हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया था कि किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूव करते हैं, और उसमें मैंने आपको एक फॉर्मल वे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन है, इसमें जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की कंडीशंस को फुलफिल करता है या नहीं करता है। तो ये एग्जांपल भी एनसीईआरटी से है। एग्जांपल 3, लेट L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2 whenever L1 is perpendicular to L2। तो अब की बार जो R है, रिलेशन R, it is defined on the set L which is the collection of all lines in a plane। किसी प्लेन में जितनी भी लाइन्स है उन सब का कलेक्शन सेट L है, और रिलेशन R is defined on this collection। Now since this contains ordered pairs and both the elements of ordered pairs will be lines from this collection, and the two lines will be related to each other whenever one line is perpendicular to the other one. The two lines, whenever perpendicular to each other, they will be related to each other under this relation R. This question tells us. Now अब हमें ये देखना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या शो करना है कि R सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। शुरू करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमें वही रिलेशन जिस सेट पर डिफाइन है, सेट L विच कंटेन्स ऑल लाइंस इन द प्लेन। सेट L के कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, तो सेट A का एक एलिमेंट लिया विच इटसेल्फ इज ए लाइन। तो L1 एक लाइन है जो इस सेट L का एलिमेंट है एक तरह से। तो L1 वी विल टेक वन एलिमेंट L1 फ्रॉम दिस कलेक्शन L। फिर हम देखते हैं कि क्या वो जो लाइन ली हमने वो लाइन खुद से रिलेटेड है। तो ये लाइन खुद से रिलेटेड कब होगी? व्हेन दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। बट वी नो दैट every line is not perpendicular to itself. There is no line which is perpendicular to itself, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर कभी नहीं होती। So L1 is not perpendicular to L1, so L1, L1 does not belong to R। तो कोई भी लाइन खुद से रिलेटेड हो ही नहीं सकती under this relation, so this relation is not reflexive। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं from set L such that L1, L2 belongs to R। फिर से देखते हैं। Since it is given that L1, L2 belongs to R, this part is given, this whole part is given, so we start from this part। L1, L2 belongs to R। Since L1, L2 belongs to R, so L1 is perpendicular to L2 according to the definition of R। L1 is perpendicular to L2, but whenever L1 is perpendicular to L2, definitely L2 will also be perpendicular to L1, so L2, L1 belongs to R, so this relation is symmetric। आगे बढ़ते हैं। Transitive। Now we take three elements, three lines from this collection L such that L1, L2 belongs to R, L2, L3 belongs to R, but whenever L1, L2 belongs to R, definitely L1 will be perpendicular to L2 as shown in this figure। L2, L3 belongs to R, it means L2 is perpendicular to L3, this L2 is also perpendicular to L3। Now L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, so L1 is parallel to L3, not perpendicular, so L1 is not perpendicular to L3। All the three lines are in the plane because all the three lines must belong to a plane in which all lines are in this collection L। So these three lines will be in a plane, or whenever they are in a plane and one line is perpendicular to another one,
another line is perpendicular to the third one, then definitely third line will be parallel to the first one, not perpendicular. So L1 will not be perpendicular to L3. So L1, L3 does not belong to R. तो हमने देखा कि L1 L2 belongs to R, L2 L3 belongs to R, but L1 L3 does not belong to R. So this relation is not transitive. तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस कलेक्शन and this collection contains 3 elements 1 2 3, so there must be 3 doublets 1 1 2 2 3 3, and all the 3 doublets are there in this collection, so definitely this relation R will be reflexive. Every element in 1 2 3 is related to itself under R, that is 1 1 2 2 3 3. All the 3 ordered pairs are in this set, so this relation is reflexive. फिर से देखते हैं ये रिलेशन हमारे पास है सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 1 2 है 1 2 बिलोंग्स टू R है। तो हमने देखा था कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर्स किस रिलेशन में होता है तो उसके एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में रखने पर जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है वो भी उसमें होना चाहिए। यानी कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें है तो इसका उल्टा करने पर जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है 2 1 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ये होता है तब उसे सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो दिस वन एग्जाम्पल इज सफिशिएंट टू शो दैट दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो whenever we want to prove whether a relation is not symmetric, we have to simply give an example. This type of example is called a counter example, जैसा कि मैंने आपको 11th में बताया था। तो जब भी हमें किसी रिलेशन को नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव प्रूव करना है तो केवल एक एग्जांपल देना सफिशिएंट है। डिसप्रूव करने के लिए एग्जांपल देना है, उस एग्जांपल को हम काउंटर एग्जांपल कहेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ 1 2 बिलोंग्स टू R, लेकिन इसका जो रिवर्स ऑर्डर है 2 1 ये R से बिलोंग नहीं करता। बस ये एग्जांपल दे देंगे ये प्रूव करने के लिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो जब भी हमें सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है प्रूव करना है तो केवल एक एग्जांपल देना है, काउंटर एग्जांपल जिसे कहेंगे, जो ये प्रूव कर दे, जो ये डिसप्रूव कर दे कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है। डिसप्रूव कर दे, तो डिसप्रूव कर दे उसके लिए हमें केवल काउंटर एग्जांपल देना है। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, 2 3 भी बिलोंग्स टू R, 1 2 2 3। अगर 1 2 है फिर 2 से शुरू होते हुए दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 2 3, तो 1 2 2 से शुरू होता हुआ 2 3, तो 1 3 भी होना जरूरी है। तो 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें ये देखना है कि यहाँ पर भी हमने केवल एक काउंटर एग्जाम्पल दिया, उसकी मदद से हमने प्रूव कर दिया कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R इज इक्वल टू A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन R है ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन है, और इंटीजर्स से बनने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, कौन सी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन में होंगी वो यहाँ से डिसाइड होता है। जब भी डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2, A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2, A माइनस B जो है इवन नंबर हो तो A B से बनने वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन में होगा। ये है इस रिलेशन की डेफिनेशन। तो ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए वही सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव करना है, फिर सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम
जिस सेट पर डिफाइन है z, उस z का एक एलिमेंट लेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट, फिर से कह रहा हूँ सिमेट्रिक के लिए 2 एलिमेंट, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट। तो सेट z का एक एलिमेंट लिया a, फिर हम देखेंगे क्या a से रिलेटेड है, लेकिन a से रिलेटेड तभी होगा, a से रिलेटेड तभी होगा जब a माइनस a 2 से डिवाइड होता हो। हम a माइनस a कैलकुलेट करते हैं, a माइनस a इज इक्वल टू 0 एंड वी सी दैट 0 is divisible by 2, means 2 divides 0, so this condition satisfies. So a comma a belongs to R. This is true for every element a taken from this set Z on which this relation is defined. So every doublet will be in this relation R. So this relation R is reflexive. अब हम सिमेट्रिक पर चलते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमें 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे और सेट Z से जिस पर की रिलेशन डिफाइन है। तो देयर द 2 एलिमेंट्स, लेट अस सपोज A and B, and these 2 elements are taken in such a way that this ordered pair A, B belongs to R. अब ये A, B belongs to, यहाँ तक का जो पार्ट है ये गिवन का हिस्सा है। अब हमें ये देखना है कि क्या B, A belongs to R है। तो शुरू करते हैं यहाँ से, A, B belongs to R, it means 2 divides A minus B. This comes from the very definition of relation, 2 divides A minus B. अब 2 A minus B को डिवाइड करता है, इसका मतलब हुआ A minus B is equal to twice n. A minus B must be an integer, even integer, because it is divisible by 2. So A minus B can be written in this way, 2n, where n is an integer. Since A minus B is equal to 2n, so B minus A will be equal to minus 2n. So B minus A will also be multiple of 2. So B minus A will also be divisible by 2. So 2 divides B minus A. So B, A belongs to R. तो यहाँ से शुरू किया, A, B belongs to R, हम यहाँ तक पहुँच गए B, A belongs to R। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम्पल है, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट है, अच्छा, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के पहले अभी हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव किया है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए वही हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, A, B, C, and the 3 elements are taken from the set Z such that these 2 ordered pairs belongs to R. A, B belongs to R, B, C belongs to R. अब हम यहाँ से शुरू करते हुए ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि A, C belongs to R. Now A, B belongs to R, what does it mean? It means that 2 divides A minus B. So A minus B will be a multiple of 2. So A minus B is equal to twice n, where n belongs to Z. This is our first equation. Now B, C belongs to R, it is also given. So B, C belongs to R means 2 divides B minus C. So B minus C is equal to twice m. B minus C will also be a multiple of 2. So B minus C is equal to twice m, where m belongs to Z. This is our second equation, first and second. Through these 2 equations, we will try to relate A and C, how they are related. For this, we have to eliminate B, or we can eliminate B by adding these 2 equations. So we add these 2 equations. So adding 1 and 2, we get A minus B plus B minus C is equal to twice of n plus twice of m. B cancel out, so A minus C will be equal to twice of n plus m. From this, we can say that A minus C is a multiple of 2. So A minus C is divisible by 2. So 2 divides A minus C. So A, C belongs to R. So R is also transitive. तो हम देखते हैं कि R जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो एग्जांपल है ये हमें एक नए कॉन्सेप्ट को सीखने में हेल्प करेगा, और वो कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होती है, इसको जानने के लिए हम इसी एग्जांपल पर फिर से विचार करते हैं। ये जो रिलेशन R है वो सेट Z पर डिफाइन है, और इसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिनके दोनों एलिमेंट्स इस तरह के हैं, दोनों इंटीजर्स इस तरह के हैं कि उनका डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है। हम
हमने अभी अभी देखा कि ये रिलेशन कैसा है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इस इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत क्या है, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये इस सेट जेड के एलिमेंट्स को किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है वो हम यहाँ थोड़ा और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिलेशन आर जो है इस सेट जेड पर डिफाइन है। दिस रिलेशन आर रिलेशन और दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन दिस सेट जेड। तो इस सेट जेड का हम एक एलिमेंट लेते हैं। वी टेक वन एलिमेंट ऑफ जेड, लेट अस सपोज 0। हमने 0 लिया और फिर हम उस सेट जेड के का एक एलिमेंट 0 लिया और उस सेट जेड के वो सारे एलिमेंट्स ढूंढने का प्रयास करते हैं जो इस 0 से रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन आर। यानी कि इस 0 से जो भी रिलेटेड एलिमेंट हैं अंडर दिस रिलेशन, यानी 0 के साथ वो सारे इंटीजर्स ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाते हों जो इस रिलेशन में है, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वी टेक वन एलिमेंट ऑफ जेड से 0, वी फाइंड आउट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जेड विच आर रिलेटेड टू 0। तो 0 से कौन कौन रिलेटेड होंगे, तो देखिए 0 एक इंटीजर है और 0 के अलावा दूसरे इंटीजर सपोज इसे 1 है, तो 0 और 1 लें तो उनके बीच का डिफरेंस तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है। सो 0 इज नॉट रिलेटेड टू 1 बट 0 इज रिलेटेड टू 2 बिकॉज 0 and 2 they differ by 2 and 2 is divisible by 2, so 2 is also related to 0. Similarly 4 is related to 0, 6 is related to 0. तो सारे जितने भी इवन इंटीजर्स है डेफिनेटली obviously all even integers are related to 0 and no odd integers related to 0 because if we take any odd integer then difference between odd integer and 0 will not be divisible by 2, so they will not be related to each other. So all even integers are related to 0 and no odd integers is related to 0. तो ये हमने यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा कि ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये जिस सेट जेड पर डिफाइन है उस सेट जेड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें एक खासियत है कि अगर हम उनमें एक एलिमेंट पिकअप करते हैं, लेट अस सपोज 0, और 0 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि 0 से सारे इवन इंटीजर्स रिलेटेड होंगे लेकिन 0 से कोई भी ऑड इंटीजर्स रिलेटेड नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक ऑड इंटीजर लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं जो जेड से बिलोंग करता है और फिर हम देखते हैं कि इस 1 से कौन कौन रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन आर, अंडर दिस इक्विवेलेंस रिलेशन आर, इस 1 से कौन कौन रिलेटेड है। तो डेफिनेटली जितने भी ऑड इंटीजर्स है वो 1 से रिलेटेड होंगे क्योंकि डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड इंटीजर्स विल बी इवन एंड डिविजिबल बाय 2, सो ऑल ऑड इंटीजर्स आर रिलेटेड टू 1। और कोई भी इवन इंटीजर्स है वो 1 से रिलेटेड नहीं होगा क्योंकि जैसे 1 और 4 लिया तो 1 और 4 के बीच का डिफरेंस 3, लेकिन 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1,4 विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन। सो 1 से जितने भी इंटीजर्स रिलेटेड हैं वो सारे ऑड होंगे और जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वो 1 से रिलेटेड नहीं होंगे। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम यहाँ पर 2 सेट ढूंढने में समर्थ हो गए हैं। देर आर 2 सेट्स, ए सेट ई ऑफ इवन इंटीजर्स एंड सेट ओ ऑफ ऑड इंटीजर्स। सेट ओ जो ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन है, सेट ई जो इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। ऐसे 2 सेट है, उनमें हम ये प्रॉपर्टी पाते हैं। क्या प्रॉपर्टी? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ई आर रिलेटेड टू ईच अदर। सेट ई के जो एलिमेंट्स है दे आर इवन इंटीजर्स and all even integers are related to each other because their difference is even and it is divisible by 2. Difference is divisible by 2, so they are related. So all elements of set E are related to each other and all elements of set O are also related to each other because set O contains odd integers and odd integers difference between any two odd integers is even, so divisible by 2, so they are related to each other. So all odd integers are related to each other, ऑल इवन इंटीजर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो सेट ई के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सेट ओ के जितने भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा, नो एलिमेंट ऑफ ई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ओ। ई का कोई भी एलिमेंट जो है वो ओ से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ई का जो एलिमेंट है वो इवन, ओ का एलिमेंट ओड, इवन माइनस ओड विल बी एन ओड नंबर, सो दिस डिफरेंस विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2, सो ordered pair
frame by taking elements from set E and O will not be an element of relation. So no element of set E is related to any element of O, और उल्टा भी होगा, यानी O का कोई एलिमेंट E से रिलेटेड नहीं होगा, E का कोई एलिमेंट O से रिलेटेड नहीं होगा। और सेट E और सेट O ऐसे हैं कि इनके कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि सेट E में सारे इवन इंटीजर्स हैं, सेट O में सारे ओड इंटीजर्स हैं, तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, और इनका जो कलेक्शन है, इनका जो यूनियन है, वो वापस सेट Z हो रहा है। तो ये जो सेट E सेट O, ऐसे जो सेट E और सेट O है, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये जो सबसेट्स है, इनको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। तो E एंड O बोथ आर सबसेट्स ऑफ Z, जिस पर रिलेशन डिफाइन है। तो सेट E और सेट O दोनों ही सबसेट है Z के, और इन दोनों सबसेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो ये इक्विवेलेंस क्लास जो है जनरेट हुई है रिलेशन के कारण। तो इस रिलेशन ने इन इक्विवेलेंस क्लासेस को इंड्यूस किया है। सो एवरी रिलेशन, एक्चुअली इन जनरल वी कैन से दैट एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूसेस इक्विवेलेंस क्लास इन द सेट ऑन विच रिलेशन इज डिफाइंड। यहाँ देखिए, जो सेट E है उसमें सारे ओड इंटीजर्स है, इसलिए 1 भी है। तो इस सेट E को हम इस तरह से भी लिखते हैं, सेट E इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 3, in fact bracket any odd number. Similarly, O contains all even integers, so O contains 0, so we can also write set O is equal to bracket 0 bracket 2, in fact bracket any even integers। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो सेट E एंड सेट O है, दोनों ही इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। तो इन जनरल हम क्या कहेंगे, an equivalence relation R in a set X divides X into mutually disjoint subsets AI called partitions or subdivisions of X। रिलेशन R जो है सेट X पर डिफाइन है, तो इस सेट X को वो सबसेट्स में ब्रेक कर देगा। ये जो रिलेशन R है वो जिस सेट X पर डिफाइन है उस सेट X को सबसेट्स में ब्रेक कर देगा, और ये जो सबसेट्स होंगे they will be mutually disjoint, means there will be no element common between the subsets. These subsets are called partitions or subdivisions, or we can say equivalence classes. These partitions or subdivisions are also called equivalence classes, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। तो ये जो partitions, subdivisions या equivalence classes है, these are induced by the equivalence relation। और ये जो partitions है, they are actually the subsets of this set X। और ये subsets किस तरह के होंगे, they will have the following properties। all elements of set AI, AI means partitions, subdivisions, equivalence class, subsets। तो ये जो subsets हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेट लेते हैं, तो उस पर्टिकुलर सबसेट A, सपोज A1, A2, A3, सपोज A1 लिया, उस A1 के जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। जैसा कि हमने पहले देखा कि सेट O जो था, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, उसमें सारे इवन इंटीजर्स एक दूसरे से रिलेटेड थे, सारे ओड इंटीजर्स जो सेट E में थे वो एक दूसरे से रिलेटेड थे। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेट लेते हैं विच इज इंड्यूस्ड बाय दिस रिलेशन, तो कोई पर्टिकुलर सबसेट लेते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स है दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दूसरा, कोई भी एक पर्टिकुलर सबसेट लेते हैं, उसका कोई भी एलिमेंट जो है दूसरे सबसेट से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में तो एक दूसरे से रिलेटेड हैं फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग, लेकिन वो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। और यदि हम देखें तो ये जो जितने भी सबसेट्स है दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। इट मीन्स AI इंटरसेक्शन AJ, हियर इट इज AJ, it is AJ, this is AJ। so AI intersection AJ is equal to phi। और इन सब जो जितने भी सबसेट्स है इनका यूनियन करें तो वापस पूरा सेट है, तो म्यूचुअली
डिसजॉइंट सेट्स हैं और देयर यूनियन विल बी इक्वल टू द सेट एक्स। तो इस तरह के जो सबसेट्स हैं इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ए रिलेशन आर इन अ सेट एक्स इंड्यूसेज सच पार्टीशंस ए आई इन द सेट एक्स। मान लीजिए कोई रिलेशन है और वो किसी सेट एक्स में इस तरह के पार्टीशंस इंड्यूस करता है जो कि अभी ऊपर जो बताई वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, ऐसे पार्टीशंस इंड्यूस कर देता है कोई भी रिलेशन, देन दिस रिलेशन विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो इस तरह के पार्टीशंस इंड्यूस करेगा, और यदि कोई रिलेशन पार्टीशंस इंड्यूस करता है देन दिस रिलेशन विल ऑल्सो बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 सबसेट्स है जेड के, जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जेड के 3 सबसेट्स हैं a1 a2 a3। a1 कंटेंस ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, a2 कंटेंस all such integers which when divided by 3 will leave 1 as remainder. So a2 will contain -2, 1, 4, etc. Similarly, set a3 contains all those integers which when divided by 3 leave 2 as remainder. तो इसमें इस तरह के जो है इंटीजर्स हैं जिनको यदि हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है, यहाँ 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आता है, यहाँ 3 से पूरी तरह से डिवाइड होते हैं। तो ये हमने 3 सेट बनाए हैं। अब ये 3 सेट इस तरह के हैं, आप समझ सकते हैं कि सेट a1 का कोई भी एलिमेंट सेट a2 में नहीं है, सेट a2 का कोई एलिमेंट सेट a3 में नहीं है। a1 a2 a3 ऑल द 3 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। और यदि हम a1 a2 a3 का यूनियन बनाते हैं तो वापस z आता है। तो ये जो a1 a2 a3 है एक्चुअली इस z के पार्टीशंस हैं, सब डिविजन्स हैं, तो इनको हम इक्विवेलेंस क्लास कह सकते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंस क्लास है z है, यदि हम कोई एक रिलेशन लेते हैं, सपोज जैसे मैंने एक रिलेशन लिया a, b 3 डिवाइड्स a माइनस b, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन की खासियत है कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के अंतर्गत हम बात करें, इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो a1 contains all integers related to 0. Related to 0 means related to 0 this will be this will, ये जो है हम तभी कह सकते हैं जब कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन हो। रिलेटेड टू जीरो हम तभी बोलेंगे जब कोई ना कोई रिलेशन हमें दिया हुआ हो। तो ये रिलेशन मान लो ये दिया हुआ है, इस रिलेशन के संदर्भ में हमें सोचना है, वी हैव टू थिंक इन विद रेफरेंस टू सम रिलेशन। तो इस रिलेशन के संदर्भ में हम देखते हैं कि a1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर रिलेटेड टू 1, 0 से रिलेटेड है, क्योंकि 0 और 3 इनका बीच का डिफरेंस 3 और 3 इज डिविजिबल बाय 3, 0 और 6 इनके बीच का डिफरेंस 6 और 6 इज डिविजिबल बाय 3। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a1 आर रिलेटेड टू ईच अदर, all the elements of set a2 are also related to each other because the difference between any two elements from this set a2 will be a multiple of 3। देखो 4 और 1 के बीच का डिफरेंस 3, 1 और -2 के बीच का डिफरेंस भी 3, ऐसे तो ये भी क्या है, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही a3 के जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू इच अदर। लेकिन यदि हम कोई भी एक एलिमेंट सेट a1 का लेते हैं और सेट a2 का कोई एलिमेंट लेते हैं और उन दोनों में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं, जैसे सपोज 3 लिया और इसका 1 लिया, इनके बीच का डिफरेंस 2 है और 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दे आर नॉट रिलेटेड। सो नो एलिमेंट ऑफ a1 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a2 और a3। तो ये वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं जो कि एक इक्विवेलेंस क्लास में होती है। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है ये ऐसा काम कर रहा है कि ये इस तरह के 3 सेट इंड्यूस कर रहा है जिनमें वो सारी प्रॉपर्टी है जो एक पार्टीशंस में होती है। तो इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है दे आर पार्टीशंस इंड्यूस्ड बाय द रिलेशन आर। a1 a2 a3 आर द पार्टीशंस इंड्यूस्ड बाय द रिलेशन आर। सो आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और चूंकि सेट a1 कंटेंस इन 0, so we also write it as a1 is equal to bracket 0, a2 also bracket 1, a3 also bracket 2। लेकिन a1 not only contains 0 but all the multiples of 3, so we can also write a1 as bracket 3r. Similarly a2 contains all those integers which when divided by 3
leave 1 as remainder. So A2 can also be written as 3r plus 1. A3 can also be written as 3r plus 2 where r belongs to z. इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है उसकी खासियत है कि वो जिस सेट पर डिफाइन होता है उसे इक्विवेलेंस क्लासेस में, पार्टीशंस में, सब डिविजन्स में तोड़ देता है। इसी तरह से यदि कोई रिलेशन है जो इस तरह का पार्टीशंस इंड्यूस करता है, देन ऑल्सो दैट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू। आपने अब तक के तीनों वीडियो ध्यानपूर्वक सुने होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब आपको करना क्या है, जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 आपको अटेम्प्ट करने हैं और उन्हें सॉल्व करते समय जो सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसमें उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो मैंने इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाया है। आप कोशिश करिए, फिर हम आगे की जो वीडियोस हैं उनमें और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।